हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा आत्माराम प्रभु हरे कृष्णा सतीश प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा धनंजय कुंदन हरे कृष्णा हरे मीना कृष्णा पीयूष एंड सोनू रोहित हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण सर हरे कृष्णा जय कुमार वेलकम जय कुमार to this discussion. हरे कृष्णा प्रभु जी Hare Krishna Hare Krishna. Please introduce yourself. Jay Kumar, please introduce. My name is Jay Kumar. Currently I am pursuing MTech in power system and ER Gupta is my elder brother. Oh, really good, very good. Hare Krishna, thank you very much. So you are pursuing in MTech which place? Mm, MTech till fourth year sir, fourth semester. Which Power place? Punjab University. Punjab University, okay. Yes. Thank you very much. Punjab University is in Chandigarh, right? Chandigarh. Ah, Yes. I think in Punjab University some of my friends are there. You know Vivek Pawar, Dr. Vivek Pawar? Yes sir. You know? Yes sir. Okay. Okay, good. Thank you very much, Jay Kumar, for joining, and also Hare thank you Krishna Prabhu ji. very much. Please join and participate in this discussion. In Chandigarh, we have a nice temple also. Yes sir. One temple. Have you visited in time? It's called yes sir. Yes sir. Okay. Okay, we'll start Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om ओम Namo नमो Bhagavate भगवते Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om ओम Namo भगवते Bhagavate वासुदेवाय नमः Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om ओम नमो Namo भगवते Bhagavate वासुदेवाय नमः Narayanam Namaskrutyam नारायणं Narayanam नमस्कृत्यं Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram नरं चैव Jaiva नरोत्तमं Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim देवीं सरस्वतीं Saraswati व्यासं Tato Jayamudire Tato ततो Jayamudire जयमुदीरये Nashtaprayesu Abhadreshu नष्टप्रायेषु भद्रेषु Nityam Bhagavata Sevaya नित्यं भागवत सेवया Bhagavate Uttama Sloke
भक्तिर्भक्त्यं करोमि भक्तिर्भवते नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा धनंजय संदेश। हरे कृष्णा धनंजय। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण सर। प्लीज रीड। हरे कृष्ण। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा सङ्गं धनञ्जय धनञ्जय सिद्धिया सिद्धो समभूत्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगो उच्यते। समत्वं योग योग उच्यते। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Purport: Krishna tells Arjuna that he should act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever disturbing senses. And who is the Supreme? The Supreme is the Lord. And because he himself is telling Arjuna to fight, nothing to do with the results of the fight. Gain or victory are Krishna's concern. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. The following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness, only can one give up the sense of proprietorship. One has to become the servant of Krishna or the servant of Krishna. That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. Arjuna is a Kshatriya, and as such, he is participating in the Varnashrama Dharma institution. It is said in the Vishnu Puran that in the Varnashrama Dharma, the whole aim is to satisfy Vishnu. No one should satisfy himself, as is the rule in the material world, but one should satisfy Krishna. So, unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashrama Dharma. Indirectly, Arjuna was advised to act as Krishna told him. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच धनंजय। And it is very beautiful verse.
हम लोग कल yesterday we discussed where Lord Krishna was telling to Arjuna that you have right on your work. You have to write, you have to work because it is your right. But you don't have the right on your and the results of your work. And you have to become unattached to your results of your work, but never be attached to not doing your duty. कल हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोगों को काम करनी चाहिए, लेकिन काम के जो रिजल्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फिर अटैच नहीं होना चाहिए। इसको स्पिरिचुअल कम्युनिज्म बोला गया है। प्रभुपाद इसको नाम देते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहा था, इसमें उनके लेक्चर्स में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज में कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, एवरीबॉडी विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, स्टेट के बिहाफ में सब लोग काम करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी गिवन टू द स्टेट एंड देन स्टेट विल टेक केयर ऑफ एवरीवन। सब लोगों को स्टेट ही देगा। देयर इज नो इंडिविजुअल ओनरशिप और प्रोप्राइटरशिप। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म भी एग्जैक्टली वैसे ही है, एंड दैट इज द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म, because Krishna is the proprietor of everything. He is the supreme proprietor. Everything belongs to him and everyone belongs to him. From him everything comes. He is the supreme proprietor. And we should act on behalf of him, not whimsically. Whatever we want for our own enjoyment, we should not act on that platform. जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए हैं, कई एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल दिए हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास कई एम्प्लॉय है, सब लोग काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट बिजनेसमैन, लेकिन सब जो काम करते हैं कभी कहीं पे लॉस होता है, कहीं पे प्रॉफिट होता है, एंड एवरीथिंग गोज टू द प्रोप्राइटर, द बिजनेसमैन। लॉस होता है तो बिजनेसमैन को ही बियर करना पड़ता है, प्रॉफिट होता है तो बिजनेसमैन बियर करता है, लेकिन उसके एम्प्लॉय जो हैं वो जस्ट दे आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम। एंड हाउ दे आर वर्किंग? They are working as per the code of conduct of the company. कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या फिर जहां से आएगा, they will act according to that rule and regulation of the company. It is not that they will work whimsically whatever they want. If they will do that, they will be fired from their position. Similarly, same case, if we are following the code and conduct, the regulations, regulative principles, everything, and we are working on behalf of Krishna, and we are engaging the results of our work in Krishna's service, then we are perfect. So therefore, in this verse also, Krishna is again advising Arjuna that perform your duty equipoised. Equipoised means हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे
कभी फेल्यूर होगा, कभी सक्सेस होगा. When we are attached to the results, we are in anxiety. When we are attached to the results, when success comes, we become very happy and we take credit. And when failure comes, we become very unhappy. We are in anxiety and we blame others. This is general tendency. But actually, a person who is completely surrendered to Krishna, a person who is in Krishna consciousness, he actually, everything, whatever comes to him, and he works always based on the regulative principles given in the Shastras and given by his spiritual master, given by acharyas. He works on that platform. And if some success comes, he gives all credit to Krishna. And if the failure comes, he takes it. That is, failure came because of my fault. तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि do your duty, perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Success or failure, such equanimity is called yoga. Therefore, yoga doesn't mean that sitting and doing some breathing exercise or meditating on something. That is not only yoga. Meditation is also yoga. Yoga, the meaning of yoga is connecting ourselves to the Supreme. That is yoga. Therefore, Krishna यहाँ पे बोल रहे हैं योगस्थः कुरु कर्माणि. My dear Arjuna, work remaining in the yoga. योगस्थः कुरु कर्माणि. इसलिए हम लोगों को जो कर्म भी करना है, हम लोग when we are performing our duty, we must be in yoga also during that time. That is possible only when we are Krishna conscious. Sangam tyaktva dhananjaya. Sangam tyaktva dhananjaya means Krishna बोल रहे हैं कि give up your association with the results. Results क्या बताएं कृष्ण? सिद्धि असिद्ध क्षमा भूत्वा. आपको अगर फेल्योर मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, उसमें आपको इक्विपाइज रहना है. समत्वम योग उच्यते. You remain always in yoga. Krishna यहाँ बोल रहे हैं. And this is called yoga. Then many questions will come. Why will work then? For whom will work? Even if we'll consider Krishna as Supreme Personality of Godhead, will he, if we'll offer the results, will he accept or not? All these things comes to our mind. So Prabhupada इसलिए explain कर रहे हैं कि जैसे हम लोग देख रहे हैं सन गॉड सूर्यदेव. सूर्यदेव जो है कितने दूर है हमारे से, नहीं बहुत दूर है, लाखों लाखों माइल दूर, लेकिन उनके किरणें हमारे पास ही पहुंच रहे हैं. पहुंच रहे हैं कि नहीं? हम लोग ये टेकिंग बेनिफिट ऑफ इट्स लाइट, सनलाइट, सन रेज, हीट, एवरीथिंग. अगर सूर्यदेव से इतना आ सकता है इतने दूर रहकर भी, तो कृष्ण इतने दूर, कितने दूर भी रहे, क्यों नहीं आ सकता है? वो क्यों नहीं खा सकते? हम जो भोग लगाएंगे तो क्यों नहीं खाएंगे? ये कंसेप्शन कुछ लोग पूछते हैं कि आप भोग लगाते हो, अगर कृष्ण खाएंगे तो आप कोई भोग नहीं लगाएंगे, सही में अगर खाएंगे तो. अरे सही में नहीं खा रहे, आपको कैसे पता चला?
सही में खा रहे हैं कृष्ण। हम लोग जब भोग लगाते हैं कृष्ण खा रहे हैं, ये खा नहीं रहे हैं, किसके से प्रूफ है? क्या प्रूफ है आपके पास? अब कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कृष्ण खा नहीं रहे हैं? और कैसे हम बोल सकते हैं कि कृष्ण खा रहे हैं? हम लोग जो दे रहे हैं, इज टेकिंग इट, इज एक्सेप्टिंग इट। He always he is ready to accept if we give something to him, offer some, because he is the most affectionate, dear father of all the living entities. तो हम लोग कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग अर्च विग्रह के सामने भोग रख देते हैं, फिर ले आते हैं, कहाँ कृष्ण खाए? कृष्ण खाए। अर्च विग्रह के सामने रख के हम लोग जब प्रेयर किए, कृष्ण जब देख लिए प्रसाद, कृष्ण कैन ईट थ्रू हिज आईज, कृष्ण कैन do any, Krishna can just, he will look at, everything will be created. जब महाविष्णु ब्रीदिंग बाहर करते हैं तब उनके शरीर से लाखों करोड़ millions and millions of universes come out. तो उनको क्या संघर्ष करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसलिए कृष्ण अगर देख लेंगे तो सब क्रिएशन संभव, सब कुछ संभव। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, अंगाणि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कृष्ण के जो अंग प्रत्यंग है, जो उनका लिम्स है, एक लिम्ब जो है दूसरे लिम्ब के जैसे काम कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कृष्ण आंख के माध्यम से देखे। हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे भौतिक इंद्रियां हैं, हमारे, हम लोग आंख के थ्रू देख ही सकते हैं, केवल खा नहीं सकते हैं। We cannot eat through our eyes, but Krishna can do through all his limbs all the activities. Like आंख के माध्यम से वो खा भी सकते हैं, कान के माध्यम से वो देख भी सकते हैं, हाथ के माध्यम से वो चल भी सकते हैं, because his form is Satchidananda Vigraha, he is the absolute truth. इसलिए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में मेटेरियल प्लेटफॉर्म का मैथमेटिक्स काम नहीं करता है, या फिर साइंस काम नहीं करता है। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जैसे इस उपनिषद में बताया गया है, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 1 + 1 = 2, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में 1 + 1 = 1 है। मेटेरियल प्लेटफॉर्म हम लोग क्या कैलकुलेशन सीखे, 1 - 1 = 0, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में 1 - 1 = 1। इस उपनिषद में दिया गया। तो इसलिए अब हम लोगों को ये नहीं सोचनी चाहिए कि कृष्ण को जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, कृष्ण ले रहे हैं क्या, सही में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। कृष्ण ऑलवेज एक्सेप्ट्स व्हाटएवर वी ऑफर विथ लिटिल लव। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं, हम लोग अगर कृष्ण भावनामृत में रहकर काम करेंगे, विल रिमेन ऑलवेज इक्विपाइज्ड, क्योंकि कृष्ण को हम लोग सेंटर मानेंगे। वी विल कीप कृष्ण इन द सेंटर। कृष्ण मेरे मास्टर हैं और मैं उनका सर्वेंट हूं। इफ आई एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिम और ऑन बिहाफ ऑफ हिज डियर सर्वेंट्स, देन आई विल बी इन द परफेक्ट पोजीशन। जैसे पहले जमाने में हम लोग देखते थे, सबके घर में विग्रह होता था और एक रूम पे रखते थे विग्रह को, डीटी रूम। और डीटी रूम में पहले सुबह उठते ही
स्नान कर कर सीधा डीटी रूम में सब लोग आते थे, पूरा फैमिली मेंबर्स आके वहां पहले आरती होगा, भगवान को जगाया जाएगा, आरती होगा, फिर सब लोग भगवान के लिए काम में लग जाते थे। कोई भोग बनाता था, कोई झाड़ू पोछा करता था, फिर करके फिर से अपने अपने काम में चले जाते थे। हम लोग देखें इवन बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति, बिरला हाउस हुआ या फिर उन लोगों के घर पे भी बड़े बड़े टेम्पल्स हुआ करता था। वो लोग सब एकत्रित होके एक साथ कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, फिर अपने अपने ऑफिस में जाते थे काम करने। ये सिस्टम है, पहले से है एंड अभी भी है, बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये कृष्ण भावनामृत है। हम लोग भगवान कृष्ण को सेंटर में रखकर उनके बिहाफ पे और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बिहाफ पे काम करनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये जो विजय पराजय, सक्सेस फेल्योर, ये सब धीरे धीरे हमारे लिए इक्वल हो जाएगा जब हम when we are situated in कृष्ण consciousness। योगस्थ कुरु कर्माणि। हाँ, जब हम योग में सिचुएट रहेंगे, विल स्टेडी in yoga. Yoga means connecting ourselves to Krishna, and this is the best way through which we can always remain connected with Krishna. हमारे डेली एक्टिविटी में if we can bring Krishna, then we always connect ourselves to Krishna. हम लोगों को डेली एक्टिविटी में कृष्ण को रखना है। सुबह नहाना है, क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए मुझे आरती करना है, इसलिए मॉर्निंग में उठकर 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे जो भी हो, उठकर नहाना है। फिर कृष्ण के लिए आरती करना है, आरती से जाकर फिर आकर में भगवत गीता डिस्कस करना है सब लोगों के साथ। तो ये भी कृष्ण के लिए करना है। तो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे कृष्ण के साथ दिन भर। फिर ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, तो काम करेंगे तो क्यों? कृष्ण के लिए काम करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा कृष्ण को ऑफर करेंगे। अगर पूरा भी ऑफर नहीं कर पाएंगे, कुछ परसेंट ऑफर करेंगे, 10%, 5%, 25%। दैट इज योगा। तो इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि, हम लोग हमेशा अगर कृष्ण कॉन्शियस में रहे, कृष्ण कॉन्शियस का प्लेटफॉर्म में, देन विल रिमेन ऑलवेज इन योगा। देन हम लोग धीरे धीरे विल एलिवेट आवरसेल्फ। बड़े सुंदर श्लोक है, इसको याद रखनी चाहिए और हमारे जीवन में उतारना चाहिए, बहुत ही। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आत्माराम प्रभु, कंटिन्यू प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, आज कंटिन्यू किया गया जो कल बताया गया था, कल के श्लोक को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसी श्लोक को फिर आज आगे कंटिन्यू करके भगवान बताते हैं कि जो है कि हमारा जो कर्म है उसमें हमारा अधिकार है, हमारा जो कर्म का फल है उसमें हमारा अधिकार नहीं है। वो हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए, कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए। और इसमें जो है एक स्थित प्रज्ञ के तरह, स्थिर बुद्धि के तरह काम करना चाहिए। जैसे कि फल की चिंता किए बिना काम करना चाहिए। अगर फल की चिंता बहुत ज्यादा करने लगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म था युद्ध करना, और वो युद्ध मैदान में अपना गांडीव रख देता है और युद्ध करने से मना कर देता है। और अपना ड्यूटी, युद्ध करना उसका ड्यूटी था, क्षत्रिय का धर्म होता है दूसरों को रक्षा करना, तो वो अपने धर्म से पीछे हट रहा है,
क्योंकि वो फल के बारे में सोच रहा है, इस युद्ध का परिणाम के बारे में सोच रहा है, युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि युद्ध का परिणाम वो जान रहा है कि मेरे अपने सगे संबंधी मारे जाएंगे, तो या फिर मैं मारा जाऊंगा। दोनों भी स्थिति में वो ये सोच रहा है कि अगर सबको मार के भी हम राज करेंगे तो क्या होगा, उसका फल के बारे में सोच के वो अपना कर्म नहीं कर रहा है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम अपना जो तुम्हारा जो कर्म है वो तुम कर्म करो। तो कहने का क्या तात्पर्य है, ये हर जगह देखा जाता है, आज के जीवन में भी देखा जाता है कि इतना हम फल के पीछे इतना आसक्त हो जाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट जीवन में मैंने देखा है, या कि बहुत किसी एग्जाम के प्रति ही इतना मतलब लोग तैयारी करते हैं बहुत ज्यादा, और कुछ नहीं हो पाया या किसी विषय में फेल हो गए या कोई जीवन में थोड़ा सा परेशानी आया। बहुत ही दुखद घटना मैंने देखा प्रभु जी, एनआईटी में जब मैं था, हर सेमेस्टर एक बच्चा अपने आप को फांसी लगा लेता था, और उस समय एज ए वार्डन बहुत परेशानी होती थी। और कारण क्या होता था कि लगातार एक सेमेस्टर में 3-4 विषय में फेल हो गया या कुछ हो गया। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि फल पे इतना ज्यादा वो कंसंट्रेट कर लेता था कि फिर से इस बार मैं फेल नहीं हो जाऊं, इसके लिए मैं अपने आप को ही खत्म कर लेता हूं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, वो फल की इच्छा इतना भी नहीं करना है कि अपना कर्म ही हम अभी का कर्म सही नहीं कर पाए। पीछे जो हुआ उसको हम नहीं बदल सकते हैं। अभी हमको जो है एक स्थित प्रज्ञ के तरह, मतलब जो है कि एक स्थिर बुद्धि लगा के कि अपना 100% दे के काम करना चाहिए। और कर्म, यही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यही योग है। भगवान कहते हैं कि योगा क्या है कि आप अपने आप को पूरी तरह से मुझ में, मेरे मन को मुझ में लगाओ, और मेरे अपने सेंस पे कंट्रोल करके जो है कि तुम काम करो, सुप्रीम पे अपना जो है ध्यान लगाओ और युद्ध करो। रिजल्ट जो है उसका तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसी तरह हम कोई भी कर्म करते हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए प्रभु जी आज। तो इसी तरह मैं जो है कि एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग जो बिजनेस का एग्जाम्पल दिए प्रभु जी आप, लोग बहुत बिजनेस करते हैं। मैं पीछे दिल्ली जो गया था, वहां पे देखा कि बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है, बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है, और वो मॉल को सील कर दिया गया है। मतलब उसमें अरबों का इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसको सील कर दिया गया है। क्यों सील कर दिया गया है कि वो सरकारी जमीन पे वो बना हुआ है। मैंने पूछा इतना अच्छा मॉल है, इसको बंद कर दिया गया सरकारी जमीन पे। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि वो किसी को जो है सरकारी जमीन बोल के उसको बेच दिया होगा, और बाद में जब पता चला अथॉरिटी को कि ये सरकारी जमीन, तो वो बंद हो गया। तो कहने का क्या तात्पर्य है, वो तो जो है कि बहुत अच्छा कर्म करना चाहा था कि इतना बड़ा बनाएंगे, बहुत अच्छा मुनाफा होगा, मगर वो हुआ नहीं। तो हो सकता है कि वो आदमी डिप्रेशन में चला गया हो, या फिर अगर भक्ति में जुड़ा हुआ होगा तो सोचेगा दूसरे तरीके से, चलो एक फेल हो गया, हम और 4 करेंगे, तो हो सकता है उस 3 में सक्सेस कर जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, हर चीज हमारे मन को कंट्रोल करने से ही है। गीता में बहुत सुंदर पिक्चर दिया हुआ है कि हमारे 5 घोड़े हैं, 5 घोड़ों का लगाम जो है वो भगवान पकड़े हुए हैं। तो उसी तरह हमारा जो 5 सेंस है, आंख, कान, नाक, मुंह, हमारा त्वचा, ये सारा जो सेंसेस करने का हमारा चीज है, उसका जो है, उसको जो हमारा कंट्रोलिंग है वो एक मन है। तो हम इसको जितना कंट्रोल करेंगे, जितना फोकस्ड वे में लगाएंगे, जैसे हमारा काम, अभी अगर हम स्टूडेंट है, हमारा काम पढ़ना है, हम टीचर है, हमारा काम पढ़ाना है, या डॉक्टर है, उसका काम अच्छे से इलाज करना है, तो कंसंट्रेट करके अगर हम करेंगे तो जो आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल कई है। अब इसी 5 सेंसेस का जो एग्जाम्पल है, जैसे कोई ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, तो ड्राइवर जो है उसका जो गाड़ी है उसमें भी
स्टीयरिंग होता है, हेडलाइट होता है, और आजकल ऑटोमेटिक कार का भी बात हो रहा है, हर तरह से सेंस करके वो गाड़ी चलता है। तो कहने का क्या मतलब है कि उसका कंट्रोलिंग एक ड्राइवर है। इसी तरह हमें अपना जो जीवन है इसका कंट्रोलिंग जो है, हमारा शरीर का कंट्रोल हमारा मन है, और इस मन को जब हम प्रभु भक्ति में लगाएंगे तभी हम अच्छे से अपने मन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यही हमको हमेशा मानना है कि भगवान हमेशा में हमारे साथ हैं, जो भी काम कर रहे हैं। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसी का प्रैक्टिस करना है। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि भगवान को भूलना नहीं, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। He is there in all the things, all the work we are doing. We should give offer that work result to the Krishna. अगर कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ तो वही प्रभु जी एग्जाम्पल दिए कि अच्छा हुआ तो कहते हैं कि ये हमने किया, और खराब हुआ तो किसी दूसरे की वजह से हुआ। ऐसा होता नहीं है, वो हमारा ही कर्म फल है जो किसी न किसी रूप में हमारे पास आ रहा है। तो ये सब चीज प्रभु जी आज चर्चा हुआ कि कैसे हम एक्चुअल योगा क्या है, योगा का प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी प्रसाद लेते हैं, उसको जो है भगवान को ऑफर करके लेना चाहिए। हमें भगवान का दास समझना चाहिए, और जो भगवान का जो पूजा कर रहे हैं, भगवान का जो भक्ति कर रहे हैं, वो कोई साधारण आदमी नहीं होता है, वो भगवान का ही रूप है। तो उनका सेवा करना भगवान के सेवा करने के बराबर है। तो इस तरह से हमें जो है योग के बारे में आज हमने सीखा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा सतीश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण आत्मा प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। आज के श्लोक में मुख्यतः हमने देखा कि कर्म किस तरह से करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो भी कर्म करना है ये योग में रह के करना है। योग का मतलब बताते हैं प्रभुपाद कि अपने मन को कंसंट्रेट करना, अपने वर्क को करना, कंसंट्रेट करना इन द सुप्रीम ऑफ गॉड। गॉड को समर्पित करते हुए, अपने माइंड को बिना डिस्टर्ब किए गॉड को समर्पित करते हुए कर्म करना है। तो कृष्ण भगवान ये करते हैं। तो जब अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते हैं तो उसे और वो फल की चिंता करने लगते हैं। तो पहले भी हमने कल भी श्लोक में देखा था कि बिना फल की चिंता किए कर्म करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन भी फिलहाल वो कर रहे थे कि वो फल पर ज़्यादा सोच रहे थे कि हमारे पड़ोसी मतलब हमें मार के क्या मिलेगा या हमें वध करके क्या मिलेगा। तो कृष्ण भगवान समझाते हुए कहते हैं कि जो भी कर्म करना है वो फल की चिंता किए बिना करना है। आगे नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, पीछे नहीं सोचना है पीछे क्या हुआ, हमें प्रेजेंट में रहकर करना है। तो प्रेजेंट में रहकर करने से प्रेजेंट में करना है, भगवान को समर्पित करते हुए करना है। तो इसमें कहते हैं। और हमें कोई भी कर्म करना है तो अपने आप को मालिक समझ कर नहीं करना है, एज ए सर्वेंट, प्रभु का सर्वेंट मानते हुए करना है। क्योंकि हम लोग सभी प्रभु के दास हैं। तो हमें कोई भी कर्म जो करना है वो भगवान को समर्पित करते हुए डिस्चार्ज ड्यूटी करना है। क्योंकि इसमें एक चीज और भी बताया गया है कि हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इस मन को सेटिस्फाई करना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए अगर हम सेटिस्फाई अपने को कर नहीं सकते तो हम फिर इसके पीछे क्यों दौड़े। तो हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम चैंटिंग करके, उनके करके कर सकते हैं। तो हमें भगवान को चैंटिंग करते हुए हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम भगवान को समर्पित करें, काम करें, कोई भी काम करें भगवान को समर्पित करें। तो प्रभु जी आज हमने मेन तो ये सीखा कि हमें योग के बारे में सीखा कि हमें जो भी करना है वो योग में रहकर करना है। योग जो होता है वो सुप्रीम गॉड को समर्पित करते हुए हर काम करना है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा सतीश प्रभु, थैंक यू वेरी मच, नाइस, ब्यूटीफुल।
तो अरविंद प्रभु भी ज्वाइन किए हैं। अरविंद जी हरे कृष्णा। अरविंद जी हरे कृष्णा। म्यूट हैं आप। ओके so he is not responding. Okay, well, Kundan you can speak. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अरविंद प्रभु कैसे हैं? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत 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 प्रणाम प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी। आप थोड़ा कुछ प्रभु जी, बोलिए। आज मैंने जी 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 बताइए बताइए। जी जी प्रभु जी, आज मैंने श्रवण किया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सभी चीज को मेरे पर समर्पण कर दो, सब कुछ मुझ पर समर्पण कर दो। तुम जो सोच रहे हो कि ये सभी मुझसे मारा जाएगा, मुझसे पाप होगा, या जो कि क्या कहते हैं मेरा अपना है, मुझसे पाप हो जाएगा, लेकिन ये सब पहले से ही मरा हुआ है, सब पहले से ही मरा हुआ है। ठीक है, तुम कर्म कर रहे हो और कर्म की फल की चिंता को छोड़ करके सब कुछ मुझ पर समर्पण कर करके तुम कर्म करो। तुम कर्म करके भागी हो, फल के भागी नहीं हो। और इसमें प्रभु जी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं ये सब जो तुम देख रहे हो माया है, सभी माया है, ये मेरे द्वारा रचित गया माया है। और प्रभु जी आपने जिसमें एक बताया वो कि भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, प्रभु जी से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। कोई भी काम हम कर रहे हैं वो प्रभु पर समर्पित होकर करेंगे तो कभी भी हमें जीवन में दुख नहीं होगा। सब कुछ कृष्ण भगवान पे समर्पण कर करके उनको समर्पण कर करके लाभ हानि दुख सुख जीत पराजय सब उन पे समर्पण कर करके अगर किसी कार्य को हम करते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। और भगवान का नाम किसी भी रूप में हम लेते रहना चाहिए, कहे कि जीवन का कोई बहुत अमूल्य है, कभी कोई ठीक नहीं है कब क्या हो जाए किसी को। अगर हम बिजनेस ही करते हैं उसमें भी अगर भगवान का नाम किसी भी रूप में हरे कृष्णा हरे राम या किसी को भी संबोधित करते रहते हैं तो हमारा भगवान पे कृपा हमेशा बना रहता है। हमें ये कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं या हम बहुत शक्तिशाली हैं। सब कुछ उस पे समर्पण करके आपके द्वारा कोई भी कार्य अगर हो जाता है, अगर गलत कार्य भी हो जाता है, किसी से मुंह से अशब्द भी निकल गया, तो अगर आप भगवान के भक्त में लीन हैं और प्रभु में समर्पण भाव से हैं तो वो पाप आपको नहीं लगता है। भगवान का आप जप कर रहे हैं हमेशा और अपना काम कर रहे हैं और सुख दुख लाभ हानि सब उन पे समर्पित कर दिए हैं प्रभु पे, तो आपको उसका पाप नहीं लगता है, प्रभु क्षमा कर देते हैं। वो हम लोग के द्वारा बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती है, बोलने में मिस्टेक हो जाता है, किसी को वाणी से कष्ट हो जाता है, न चाह के भी कुछ ऐसा निकल जाता है, लेकिन हम भगवान के पीछे अगर समर्पण रहेंगे, पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, सब प्रभु जी का है, सब उनकी कृपा से हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट लाइक अभी सतीश जी ने बोले कि मैं जस्ट लाइक सर्वेंट हूँ, भगवान का सर्वेंट हूँ, मैं उसका दिया हुआ वर्क को कर रहा हूँ और उनसे हमेशा माफी मांगता हूँ। प्रभु जी मेरे वचन से मेरे कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे, कोशिश हमेशा यह करूंगा, क्योंकि सब में आपका ही रूप है, सब में आप जितने युग में है सब प्रभु जी आपका ही रूप है, तो मेरे वचन से मेरे कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचे। यही प्रार्थना करते रहने से, भगवान का हमेशा भक्ति करते रहने से प्रभु जी का हमेशा कृपा बना रहता है। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सर, थैंक यू सर। सर ने ऑलरेडी सारा कुछ एक्सप्लेन किया। आज मेजर लर्निंग जो है वो ये है कि जो है कृष्णा जो बताते हैं अर्जुन को कि उनको एक्ट करना चाहिए एज ए योगा में,
और ये चीज क्लियरली हमें शिला प्रभुपाद बताते हैं कि योगा का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हम लोग का जो माइंड है, अगर हम लोग समर्पित कर दे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में, तो हम लोग ये भी हम लोग को पता है कि भगवान जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है, सारे जो सेंसेज है उनके अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है। तो हम लोग जो है और जितने भी जो माया होता योग माया महामाया सारे के क्रिएटर भगवान श्री कृष्ण ही है। तो हम लोग जो क्रिएटर अगर हम उनके प्रति अगर हम लोग अपना जितना भी हम लोग का सेंसिंग जो डिस्टर्बिंग जो हम लोग का सेंसेस है, अगर हम लोग भगवान के प्रति अगर वो कर देते हैं, तो वो सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग हम लोग के हाथ में आता है। और हम लोग का जो एक्शन होता है वो भगवान के थ्रू ही मतलब एक तरह से होता है। और हम लोग जो है बहुत सारे चीजें हैं हम लोग उससे जो सिंफुल एक्टिविटीज होते हैं उससे हम लोग निकल पाते हैं। और Hare Krishna. It's not audible. Hare Krishna. Kundan is not audible. Okay. Dhananjay, you speak. Hare Krishna, sir. Hare May I audible, sir? Yes, yes. Hare Krishna, sir. Hare Krishna, Atmaram Prabhu, Satish Prabhu, Arvind Prabhu, Kundan Prabhu. So, very Hare Krishna. nice discussion today, and we have learned. Sir has given that today's purpose is very important for all of us, and really it is very much important. एंड हम लोग कितना भी कृष्ण भावनामृत में आ जाए, और जब तक हम लोग रियली कृष्ण भावनामृत को नहीं आएंगे, तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेशन आवर माइंड कि विदाउट कंसिडरिंग द रिजल्ट वी शुड डू एक्ट आवर कर्म। जो कृष्णा also advising to Arjuna that yogastha kuru karmani sangam tyakta dhananjaya. So sangam tyakta dhananjaya sir mentioned that कि without considering the result you should do karma, and it should be the equipoised yogastha yogi प्रतिष्ठित होके जो करना होगा। And what is yoga? Yoga means to concentration the mind upon the supreme personality of Godhead. तो यही सबसे डिफिकल्ट है कि हाउ टू कंसंट्रेट आवर माइंड इनटू द कृष्णा कॉन्शसनेस। हम लोग माइंड को कंट्रोल कर लेंगे तो एवरीथिंग पॉसिबल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोलिंग आवर माइंड। सो हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड? तो सर कई बार डिस्कस किए हैं कि to sense to engage our senses, that is the rishikesh or rishikesha, to engage our senses to Krishna. If we are able to engage our senses to Krishna, then we can controlling our mind, and this is called yoga. And in that way, by concentration of our mind, by yoga system, we can do our karma without consideration our results. But without consideration our result in this material world, that is very difficult. Those who are in the Krishna consciousness, people really Krishna consciousness person, they can do. But we are in practicing Krishna consciousness, although we are doing, but it is very difficult. By gradually our engage our senses, we can controlling our mind, and we can do our karma without considering the result. And Prabhupada also well mentioned here that by Krishna consciousness only one can give up the sense of the properties. But those are the Krishna consciousness, they can just give up all the properties. Otherwise, we are in attachment to the wealth, our resources. And Prabhupada also mentioned that one has to become the servant of the Krishna, or the servant of the Krishna. This is also most important, sir. Also discussed many times that we are in the servant of the Krishna.
So literally we are the servant of the devotees. तो कृष्णा बताते हैं कि आमा होते हमारे नाम बड़ो और नाम होते हमारे भक्त बड़ो. So मेरे से भी मेरे नाम और भी बड़ा है, that is the chanting of the Hare Krishna महामंत्र, and उससे भी बड़ा है मेरा devotee, those who are Vaishnava. So that's why we should respect our Vaishnavas. So that's why we should not do the Vaishnava aparat. So we should service to our devotees. जैसे कि हम लोग without mercy of Lord Nityananda, we cannot get the lotus feet of the Lord Chaitanya. Similarly, without uh, mercy of the Lord Balaram, we cannot get the lotus feet of Lord Krishna. So, in that, similarly, without mercy of the devotee, we cannot elevate ourselves. So, it is more important to the servant of the Krishna. So, our respect to all devotees, our service also to our devotees. By mercy of the devotee, we can get elevate ourselves. And that also, sir, हम लोग चर्चा किए थे yesterday कि जो साधु संग is most important. कि शास्त्र में भी ये कहा गया है कि साधु संग सर्वशास्त्रिक लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है. So love matra means the fraction of second if we do sadhu sang, so it's give us a lot of benefit. So we are in the devotees association is more important that Prabhupada mentioned here. And next, always everything we should do for the Krishna. Ki even in Varnasrama Dharma, the aim is that to satisfy the Vishnu, to satisfy the Krishna. तो इसलिए जो भी हम लोग कर रहे हैं तो we should do for the Krishna. That sir has given a lot of discussion today. And इसलिए भगवान भी ये कहते हैं कि तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तुम चाहते हो. तो इसलिए हम लोग को कुछ भी कर रहे हैं, everything we should do for the Krishna. And जो हम लोग चाहते हैं तो वही होगा. So the main learning point that we have, whatever we do without considering the result, always we do for Krishna as a equipoise. So Hare Krishna. Krishna, thank you. Thank you, Dhananjay. Beautiful. Hare Krishna. Abhinav. हरे कृष्ण सर. तो जैसा कि हम लोग हमने कल पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने कार्य जो भी हमारे कर्तव्य है, जो हमें असाइन किया गया है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, या जो हमें बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, या जो हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है, उसमें अपना 100% एफर्ट डाल के काम करना चाहिए, लेकिन उसके रिजल्ट से हमें अटैच नहीं होना चाहिए. तो आज हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वी शुड बी इक्विपॉइज इन ऑल सिचुएशन. चाहे हमें सक्सेस मिले या फेलियर मिले, हमें समान भाव से उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. और एंड दिस इज ट्रू फॉर्म ऑफ योगा. योगा का मतलब है कृष्ण को से कनेक्ट करना. अपने जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उसको कृष्णा को सेंटर मान के करना चाहिए. हमारे जो भी कार्य होते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, या उनके जो डिवोटीज हैं उनकी सेवा करना होना चाहिए. जब हमारे सारे कार्य का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना होगा तो ऑटोमेटिकली ही हम धीरे धीरे एलिवेट होंगे, और जो कर्म फल से हमारी आसक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. और यही मतलब जो ट्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने का मतलब यही है कि भगवान को सेंटर मानना. तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं तो जो धीरे धीरे हमारा जो मन है वो एलिवेट होता है, और हम कर्मफल से मतलब जो अटैचमेंट होता है उससे मुक्त होते हैं. और जैसा कि सर बता रहे थे स्पिरिचुअल कम्युनिज्म के बारे में, जो कि श्रील प्रभुपाद महाराज भी बताते थे कि जैसे कम्युनिज्म में जो होते हैं सभी लोग स्टेट के लिए काम करते हैं,
एंड स्टेट टेक्स केयर ऑफ एवरीवन्स जो उनके पॉपुलेशन है उनके नीड्स का ध्यान रखते हैं। उसी तरह स्पिरिचुअल कम्युनिज्म में हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और जो भी हमारे और हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी हैप्पीनेस है, उसका ध्यान भगवान रखते हैं। तो यही हमने पढ़ा सर आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू अभिनव, ब्यूटीफुल। हरे कृष्ण पीयूष। हरे कृष्णा सर। हमने जो है कल भी जो है डिस्कस किया था कि भगवान जो है वो अर्जुन को कह रहे थे कि जो आपकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको जो है पूरा करना जो है वो आपका काम है। आप एक क्षत्रिय हैं तो युद्ध करना जो है आपका एक धर्म है, मगर उसका जो रिजल्ट आएगा उसका उसके ऊपर जो है आपका कोई अधिकार नहीं है। मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो है आप जो है कर्म ही करना छोड़ दें, क्योंकि हमने देखा था कि अर्जुन जो है अपने फल के बारे में जो है वो इतना ज़्यादा चिंतित हो गए थे। युद्ध का जो परिणाम आने वाला था उसके बारे में जो है इतना चिंतित हो गए थे, विषाद में चले गए थे कि जो है उन्होंने अपना जो है गांडीव ही छोड़ दिया था। हम लोगों ने कल भी ये देखा था कि कर्म ना करने से भी जो है बहुत सारा जो है हानि होता है, उसके बारे में भी जो है कल हम लोगों ने पढ़ा था। और जो है यहाँ पे भी जो है भगवान जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि आपको जो है वो योग के अंदर रह के जो है आपका जो है वो कर्म करना चाहिए। और योग का जो है मीनिंग हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हमेशा जो है भगवान के बारे में सोचते रहना, भगवान को जो है हमेशा सेंटर में रख के जो है वो कर्म करना, उसको जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि वो जो है वो योग कहलाता है। और बिना किसी फल के चिंता किए बिना कर्म करना, आज के जो ये सांसारिक मोह माया है, जो मटेरियल जो नेचर है यहाँ पे, तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं है। और वो तब तक जो है पॉसिबल नहीं होता है जब तक जो है हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो है पूरी तरीके से नहीं आ जाए, कृष्ण भावनामृत नहीं हो जाए। और ये जो है हम लोग किस तरह से जो है कर सकते हैं, इसके लिए भी जो है सर ने जो है बहुत बार बताया है कि जो सबसे पहला तो जो है रहेगा कि हम लोग को जो है अपना जो मन है, हमारा जो चेतना है, उसको जो है शुद्ध करना। और उसके लिए जो है सर ने बताया भी था कि 4 रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको जो है अच्छे से जो है फॉलो करना, जो प्रभुपाद जो है हम लोग को बता के गए हैं। और जो है परसों की क्लास के अंदर भी जो है सर ने जो है 4 रूल जो हम लोग को जो है वो बताए थे, उसको जो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो है उसको निरंतर जो है वो फॉलो कर सके। जो ABCD का जो सर ने जो है रूल बताया था कि एसोसिएशन विद द डिवोटीज, B से जो है बुक रीडिंग बताया था, और C से चैंटिंग जो है वो भगवान का जो है नाम चैंटिंग करना, और D से जो है डाइट। तो ये सारी चीजें जो है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इसी को जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को जो है प्रैक्टिस करना, उसी को जो है योग जो है कहलाता है। और जब जो है हम लोग जब अपने भगवान को जो है सेंटर में रख के जब हम लोग जो अपना जो कर्म करते रहेंगे और इन सब रूल्स रेगुलेशंस को जो है जो हमारे शास्त्रों में जो दिया गया है, जो हमारे गुरुओं ने जो हम लोग को बताया है, तब जाके कहीं जो है हम लोग अपने सेंसेस को जो है वो कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि संसार के अंदर सर हमेशा जो है बताते हैं कि हमारा जो जो युद्ध ही है वो हमारे जो है वो सेंसेस से है। क्योंकि जब भी जो है हम लोग का हमारा हमारा जो कॉन्शियस है वो जब डिग्रेड होती है, तो हमारे जो है वो सेंसेस भी जो है हमारे एनिमी बन जाते हैं, जैसा कि कल भी जो है सर ने बताया था। तो हम लोग को जो है यही प्रयास करना चाहिए कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो जो प्रैक्टिस है उसको जो है हम लोग अच्छे से फॉलो करें। जो रूल रेगुलेशन जो है जो हम लोग को जो बताए गए हैं उसको जो है हम लोग फॉलो करें, ताकि जो है हमारा जो जो हमारी जो चेतना है, जो हमारे कॉन्शियसनेस जो कॉन्शियस है, उसको जो है हम लोग एलिवेट कर सके। तो ये सीखे सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण पीयूष, थैंक यू, ब्यूटीफुल। हरे कृष्ण जय कुमार जी, जय कुमार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सभी को भी हरे कृष्णा। आज जैसे कि मतलब हमने देखा कि आज योग के बारे में, योग मतलब जैसे कि हम पहले अपने आप को कंट्रोल करें, तो वो कैसे कर सकते हैं? अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रभु जी को अपने आप को अर्पित करके उनसे जो ज्ञान मिला है, जैसा उन्होंने बताया है, वैसे वैसे कर्मों को करके और ये सारी भौतिक चीजों को त्याग के अपना कर्म करें। जो भी कर्म करें वो प्रभु जी को समर्पित करें, उनका कि उनके वजह से हो रहा है। कर्म हमारा क्या काम, हम क्या कर सकते हैं? हम कर्म कर सकते हैं जो हमारे पास है। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि आज भगवान को भोग लगाने के लिए
कि कुछ भी हो आपके पास तो वो भगवान जी को भोग लगाइएगा, तो वो अर्पण करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। हमारे घर में भी जैसे हमारी माता जी हैं, वो हमेशा जो भी बनता है हमारे घर में वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो हम भी पूछते हैं उनसे, मम्मी आप क्यों अर्पण कर रहे हो? तो वो तो खाते नहीं है, पर वो बताती है, बाबा बच्चा जब मन से किसी को तुम अर्पित करोगे, कुछ भी हो, वो खाने की चीज हो या कुछ भी, तो वो चीज ग्रहण करते हैं। और ये तो भगवान है, ये सब कुछ ग्रहण करते हैं, बस हमें वो दिखता नहीं है क्योंकि हम वैसे उसे देख नहीं रहे होते हैं। तो प्रभु जी आज इन्हीं सब के बारे में हमने थैंक यू वेरी मच जय कुमार, ब्यूटीफुल। हरे कृष्ण, थैंक यू जय कुमार जी, बहुत बढ़िया समझाए। हरे कृष्ण रोहित। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आज हम लोगों ने यही सीखा कि जब अर्जुन जी जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो युद्ध का परिणाम से विचलित हो जाते हैं कि युद्ध के बाद तो नहीं, हमारे सभी सगा संबंधी नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे तो राज करेंगे, फिर अकेले राज करके ही क्या करेंगे। उस समय वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। तो फिर वहां पे प्रभु चैतन्य उनको योग के बारे में वहीं से समझाते हैं। तो फिर आज हम लोगों ने योग के बारे में यही सीखा कि योग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उठे और मतलब 2-4 एक्सरसाइज कर लिए वो योग हुआ, ये योग नहीं। योग मतलब कोई भी जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसमें अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ करें, वह योग है। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, हम लोग अभी चैंटिंग कर रहे हैं, तो चैंटिंग करते टाइम हम लोग अपना 100% देकर चैंटिंग करेंगे, तो ये भी एक प्रकार का योग ही है। और यहीं से हम मतलब चैतन्य प्रभु के जो भी काम करते हैं तो ये पूरा 100% के साथ करना चाहिए। और यहाँ से एक एग्जाम्पल ये भी था कि हम लोग जैसे कि जो भी चैतन्य प्रभु को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो फिर ये नहीं बता, मतलब ये कंफ्यूजन रहता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि प्रभु को जो प्रसाद चढ़ा है वो खाए या फिर नहीं खाए। तो फिर हम लोग जो देखते हैं, हम लोग अपने इंद्रियां से वो एक इंद्रियां एक ही काम कर पाते हैं, लेकिन प्रभु के पास जो इंद्रियां है वो एक इंद्रियां से बहुत सारे काम हो पाते हैं। इसलिए वो हम लोग देखने के कैपेबल नहीं है कि वो उनका प्रसाद जो दिए वो खा पाए या फिर नहीं खा पाए। और जैसे हम लोग स्टडी भी करते हैं तो हम लोग को पूरा कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करना चाहिए कि हम लोगों का एक स्टूडेंट का योग हो जाता है। आज यही सीखा हम लोगों को। हरे कृष्णा, थैंक यू सोनू। रोहित, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण सोनू। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत। आज हमने यही सीखा कि प्रभु अर्जुन जो है अपने रणभूमि में मोह माया के जाल में फंस जाते हैं कि सब अपना परिवार है, भाई है, चचा है। रणभूमि में जो तीर धनुष है वो त्याग देते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। तब भी कृष्ण भगवान अपना विषम रूप लेते हैं कि हम ही नारायण, हम ही विष्णु, हम ही महेश, सब हम ही है, सूर्य चंद्रमा सब हम ही है। तुम किसका जाल में, किस मोह माया में फंसे हुए हो? तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध करो। और सर जो है मन अपना है, मन के बारे में सर कि मन अपना कंट्रोल में, अपना बस में रखें, भगवान कृष्ण की भक्ति करे, जो भी काम करे अपना कंसंट्रेट होके करे काम, ज्यादा फल की चिंता न करे। कोई भी किसी चीज की तैयारी करता है तो अपना 100% दें, ज्यादा फल की चिंता न लें कि हाँ क्या होगा, फेल होंगे या पास होंगे। यही सीखा हमने सर। हरे कृष्णा सोनू, नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। We'll stop here. Hare Krishna.